Okay, so we are discussing equilibrium under perfect competition. Okay, I hope yesterday's discussion is clear to you, where we finalized that the equilibrium point for a firm under perfect competition will come when it satisfies two conditions. The first condition was, so this is, for example, this is your MR, that is as good as your AR, as good as price, and this is your marginal cost curve. So this here we are plotting cost and revenue. Here we are plotting output. This is x-axis, this is y-axis. So the two conditions were, first condition, that your MR should be equal to MC. The point where MR and MC are equal, such point is going to give you the equilibrium. That was the first thing we did. Yes, where MR is equal to MC. That was the first condition for achieving equilibrium. So when I say MR is equal to MC, it comes at 2 points, here also and here also. We cannot have two equilibrium points. So the second condition was that MC curve cuts MR curve from below. So we understood that, okay, this is the point, or this is the point where my MC curve is cutting MR curve from below. So I named this point, for example, point A. Yes, point A will be the point of equilibrium and not this point. Because at point A, both the conditions are satisfied, that MR is equal to MC and MC curve is cutting MR curve from below. Now, we have two types of equilibrium, or basically this equilibrium is divided into the periodicity. So if you talk about short term, so in short term, they say that a firm can either get abnormal profits or they can get losses. Now, in short period, we understand that some factors are fixed, some factors are variable. So if you want to change the production, you can change it by changing the variable factors. But यहाँ पे understand करना कि short term market changes आप grab कर सकते हो. For example, in between tomato prices rose like anything. It went to 200 rupees kg, 220 rupees kg, which was sometimes 20 rupees kg went to 220. But that is not going to be a long term phenomenon. एक abnormal profit मिल गया, एक ऐसा profit मिल गया जो expected नहीं था. But it's going to be a short term matter. एक बार market settle हो जाएगा, prices will again come down. Now it is already come down to 10 rupees, 20 rupees kg as such. So short run में आपको abnormal profits हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट कैन डिसरप्ट एवरीथिंग. सो आप अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट, आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट, आपको लॉसेस कुछ भी हो सकता है. बट जब आप किसी फर्म का लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो लॉन्ग पीरियड में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे. मतलब लॉन्ग पीरियड में सारे फ्लक्चुएशंस एडजस्ट हो जाते हैं. कभी कभी हायर प्रॉफिट्स, कभी कभी लॉसेस, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट्स. ये सबको अगर आप एवरेज आउट कर दोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा. आपको सुपर प्रॉफिट्स कभी नहीं मिलेंगे लॉन्ग रन में. आपको लॉसेस, जनरली अगर लॉसेस होंगे तो आप कंटिन्यू करोगे ही नहीं. सो लॉन्ग रन में अगर आप बिजनेस कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो ऑफ कोर्स आप बिजनेस कर रहे हो बिकॉज यू आर गेटिंग प्रॉफिट्स. द मोमेंट आई एम सेइंग दैट आई एम इनकरिंग लॉसेस एंड लॉसेस एंड लॉसेस, then it is not recommended to continue doing the business.
तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे। सो शॉर्ट रन में क्या क्या पॉसिबल है? शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में क्या क्या पॉसिबल है? आपको शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसको हम सुपर प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, मिल सकता है, या इवन लॉसेस भी मिल सकते हैं। और लॉन्ग रन में सब चीजें सेटल होके आपको जनरली क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या होते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स? आई विल डिस्कस। अंडरस्टैंड वन थिंग, शॉर्ट पीरियड में एनीथिंग कैन हैपन। You can get abnormal profits, you can incur losses. Whatever is happening, it's okay. But if you survive in the market and continue doing your operations, in the long run, you should end up with normal profits. So let us see what are all this. Okay. So they say when the firm is in short period, it can get abnormal profits. अब वो diagram क्या है? Okay. Uh, let me just focus on my diagram as of now. So this is your x axis, this is your y axis. x axis पे हम प्लॉट कर रहे हैं आउटपुट, y axis पे हम प्लॉट कर रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। हमने पहले ही देखा हुआ है हमारा mr इज ऑलवेज इक्वल टू ar इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ये आपका mc कर्व है जो कि यू शेप। अब अगर आप कभी भी नोटिस करोगे तो लेट मी जस्ट मेक इट थोड़ा सा प्रॉपर, जस्ट सो दैट आपको वो ग्राफ अच्छे समझ में आए, इसके लिए थोड़ा सा डीपर यू। ठीक है। अब जनरली आप जब भी देखोगे तो आपका जो एसी, आपको जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो आप प्रॉफिट फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज कॉस्ट। आप जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट यूजिंग एवरेज और टोटल। आप टोटल प्रॉफिट निकालिए या एवरेज प्रॉफिट निकालिए, बात एक ही। सो जब भी आप एवरेज कॉस्ट का कर्व देखोगे, वो एमसी कर्व कंपैरिजन में उसका जो लोअर पॉइंट है वो मोर ओवर आगे आएगा। आप जब भी एसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका जो लोअर पॉइंट है वो जनरली आपको एमसी के लोअर पॉइंट से आगे मिलेगी जनरली। बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट कैसा है? मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली स्टीपली गिरता है, फिर एक बॉटम लेता है और फिर स्टीपली ऊपर जाता है। एवरेज कॉस्ट कर्व जनरली एवरेज आउट ना, उसके अंदर पुराने वाले का और नए वाले का दोनों का मिक्सचर है। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ नए वाले आ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट में नए और पुराने दोनों आ रहे हैं। तो उस कर्व को कुछ हद तक एक हाइट मिल जाती है, एक लेवरेज मिल जाता है आगे तक। अब अगर आप, आपका पहला का, आपका आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, करेक्ट? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट था, राइट? लाइक इफ आई से दिस, जस्ट अ मिनट, ये जो पॉइंट है क्या आपको दिख रहा है? ये पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एमसी कर्व इज कटिंग एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। एबल टू सी दिस? इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है E1 मान लो, या ई पॉइंट दिया है। क्या आप देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, so that E point is your equilibrium where MC curve is cutting MR curve from below. अब ये जो पॉइंट है ये आपका कॉस्ट पॉइंट है। मतलब अगर मैं इससे यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट। ये मुझे ऑलरेडी पता है ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है। सो लेट मी जस्ट नेम दीज पॉइंट्स। सो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है, लेट मी कीप इट सिंपल। सो ये आपका ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
ये ई है और ये डी है मान लो। ठीक है, और इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं एफ। अब अगर आप गौर से देखोगे तो एक फर्म जो शॉर्ट रन में काम कर रहा है, एक फर्म शॉर्ट टर्म में काम कर रहा है, उसका अगर मुझे टोटल रेवेन्यू फाइंड करना होगा, आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, करेक्ट? हाउ डू यू गेट योर प्रॉफिट्स? यू गेट प्रॉफिट्स एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? कहना इसे, जितना क्वांटिटी सेल किया इनटू, अच्छा एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जितना क्वांटिटी सेल किया इनटू प्राइस, आपको आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा। यस। अगर आप अगर आप क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हो तो क्या आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इतने आइटम्स बेचे और इस रेट पे बेचे, इफ आई मल्टीप्लाई देम आई विल गेट माय टोटल रेवेन्यू माइनस माइनस टोटल कॉस्ट, क्यू इनटू कॉस्ट। तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्राइस और ए आर इक्वल है, मतलब आई कैन सब्सटीट्यूट दिस एज क्यू इंटू ए आर इज इक्वल टू क्यू इंटू ए सी। ऑफकोर्स जितना एवरेज कॉस्ट होगा, इफ आई मल्टीप्लाई एवरेज कॉस्ट विद द क्वांटिटी आई गेट टोटल कॉस्ट। मान लो अगर प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट है 15 रुपया, और इस एवरेज कॉस्ट पे अगर मैंने 10 आइटम बेचे हैं, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 150 ना। Because how do you get AC? You get AC as TC upon Q. AC is what? TC upon Q. Speak up, guys. AC is what? TC upon Q. Yes, sir. So what is TC? TC is AC into Q. TC is what? TC is AC into Q. I am just substituting the values. ठीक है? So मैंने TR को substitute किया हुआ है, and I have made the formula कि TR is nothing but quantity into AR, and TC is nothing but quantity into AC. If I if I find a differentiation of this, I should get my profit. अच्छा, क्वांटिटी कितना है अपना, क्वांटिटी कितना सेल किया है, Q इज नथिंग बट ओडी। हम लोग जब भी बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमारा Q इज नथिंग बट ओडी। यस और नो? Yeah. यस। Yes. और एवरेज रेवेन्यू क्या है हमारा, कहना है इसे ओ ए, इतना हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा, माइनस वापस कितना क्वांटिटी बेचा, ओडी, इंटू एवरेज कॉस्ट कितना है, ओबी। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो इस चीज को? पहले बात मुझे यहाँ तक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ये समझा है। अगेन आई रिपीट, टी आर माइनस टीसी इज योर प्रॉफिट। ये तो समझ में आता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आई गेट माय प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? क्वांटिटी इंटू एवरेज कॉस्ट। मैंने प्राइस को सब्सटीट्यूट किया विथ ए आर, बिकॉज प्राइस और ए आर दोनों इक्वल है। तो मुझे मिला फॉर्मूला, क्वांटिटी इंटू ए आर विल बिकम माई टी आर, एंड क्वांटिटी इंटू ए सी विल बिकम माई टी सी। अब मैंने क्वांटिटी यहां से देख लिया, तो क्वांटिटी मेरा आ रहा है ओडी, और ए आर आ रहा है मेरा ओ ए। क्वांटिटी वापस ओडी और ए सी आ रहा है मेरा ओबी। क्या यहाँ तक ठीक चल रहा है? Yes, sir. इसका मतलब है, लेट मी जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर जो अब तक यूज नहीं हुआ है, सो टू गेट। ओके, सो कैन आई सिंपली से, अगर आप नोटिस करोगे, ओडी ओ ए, मतलब ओडी और ओ ए इज नथिंग बट दिस एंटायर बॉक्स। ये जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है आपको, अगर मैं यही चीज यहाँ पे आपके ग्राफ में दिखाऊं, तो कैन यू नोटिस
that OP and OM will become my average quantity and my output sold and my average revenue. अगर मैं ओपी और ओ एम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू मिलेगा यहाँ पे? ओपी और ओ एम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे मेरा टोटल रेवेन्यू मिलेगा? इतनी क्वांटिटी बेची और इस रेट पे बेची है, इतनी क्वांटिटी बेची है और इस रेट पे बेची है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। तो ये जितना भी पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, जितना भी पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, कैन आई सिंपली से ये पूरा की पूरा रेक्टेंगल विल बी माई टोटल रेवेन्यू? प्लीज यस। स्पीक अप गाइस। यस। तो अगर मैं इसको बोलूँ सिंपली कि मेरा मेरा पूरा जो वो जो पूरा रेक्टेंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? ओ पी क्यू एम। ओ पी क्यू एम इज माई टोटल रेवेन्यू। ओ पी क्यू एम इज माई टोटल रेवेन्यू। यस। 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 और अगर आप आपका कॉस्ट कर्व देखते हो तो आपने क्या बोला कि उतना बेचने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा है? तो ये क्वांटिटी बेची ओ एम और खर्चा आया ओ एस। खर्चा आया ओ एस बिकॉज आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पे टच किया है। एवरेज कॉस्ट ने इक्विलिब्रियम के जो क्वांटिटी था उसको टच किया हुआ है एट पॉइंट आर। तो कहना इससे अगर मैं ओ एम और ओ एस को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मेरा टोटल कॉस्ट मिलेगा, जो कि ये जो वाइट पार्ट है ये रहेगा, हाँ। जिसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं? वी कैन नेम इट एज ओ एस आर एम। ये आपका बन जाएगा टोटल कॉस्ट। तो अगर आप ये बॉक्स जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें से ये वाला बॉक्स जो आपका टोटल कॉस्ट है इसको माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या बचेगा? जो पार्ट अभी शेडेड है वो वाला, दिस वन, दिस विल बिकम योर प्रॉफिट। यस। करेक्ट। और अगर मुझे प्रॉफिट को विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना होगा तो आई कैन सिंपली से माय प्रॉफिट विल बी नथिंग बट पी क्यू आर एस। माय प्रॉफिट विल बी नथिंग बट पी क्यू आर एस। पहले जस्ट टेक 2-3 minutes, लेट मी जस्ट अगेन 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 डिस्कस दिस बिकॉज ये शायद थोड़ा सा क्रिटिकल जैसा समझने में बट इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट स्टिल लेट मी जस्ट हैव इट वंस अगेन। ये आपका आउटपुट है और ये आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू। हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो भी प्रॉफिट कंपटीशन है उस केस में एम आर ए आर और पी हमेशा सेम रहेंगे। एम आर ए आर और पी हमेशा सेम रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे। और आपका जो एमसी कर्व है वो यू शेप रहेगा। एमसी कर्व है वो यू शेप रहेगा एंड दिस विल बी योर, मान लो दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्वांटिटी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी और ये प्राइस आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगी। लेट अस नेम इट। ये है ओ ए और ये बी और आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका नाम दिया है समझ लो सी। ठीक है। अब जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो योर एवरेज कॉस्ट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एवरेज कॉस्ट कर्व का जो लोअर पॉइंट रहेगा वो जनरली आपके एमसी कर्व के आगे रहेगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो आपका कॉस्ट इज लोअर देन योर रेवेन्यू। ये फर्स्ट सिनेरियो। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, हमेशा एसी कर्व ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है।
बट अगर ऐसा हुआ तो आपका एसी कर्व विल बी बिलो द एमसी कर्व, वो नीचे से जाएगा और उसका लोअर पॉइंट एमसी के आगे अगर आता है तो मतलब है कि आपकी कॉस्ट यहाँ पे है, विच इज एट पॉइंट डी, और आपकी क्वांटिटी तो अभी भी ओबी ही रहेगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो तो अच्छा सिनेरियो है जहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट इज बिलो योर मार्जिनल कॉस्ट। जब भी आपका एवरेज कॉस्ट इज बिलो मार्जिनल कॉस्ट, आप अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब आपने क्या बोला कि सर इसमें प्रॉफिट किधर है, तो प्रॉफिट निकालते हैं। सो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जहां पे टोटल रेवेन्यू आता है पी इंटू क्यू, एंड टोटल कॉस्ट आएगा, मान लो क्यू इंटू एवरेज कॉस्ट। अब पी ऑलरेडी हम बताए, पी और ए आर इक्वली हमारे, तो कैन आई जस्ट सब्सटीट्यूट ए आर इंटू क्यू माइनस ए सी इंटू क्यू, मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट। अब ए आर इज व्हाट? एवरेज रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू कितना है एवरेजली? आपका रेवेन्यू है ए ओ ए, आपका रेवेन्यू है ओ ए, और आपने इस ओ ए कमाने के लिए इस प्राइस पे, इस ए आर पे आपने कितनी क्वांटिटी बेची है? ओबी। तो कहना इससे, अगर मैं ओ ए इंटू ओ बी करता हूं तो मुझे मेरी टोटल रेवेन्यू मिल जानी चाहिए, जो कि नथिंग बट ये पूरा की पूरा स्क्वायर रहेगा, बॉक्स रहेगा। यस, Yes. यस। और मेरा ए सी इज व्हाट? ओ डी, एंड क्यू इज अगेन ओ बी। अगर मैं ओ डी इंटू ओ बी करता हूँ, ओ डी इंटू ओ बी करता हूँ, तो मुझे मेरी कॉस्ट मिल जाएगी, जो कि नथिंग बट दिस पार्ट। तो ये खर्चा आ गया, ऊपर आपका रेवेन्यू आ गया। तो अगर इफ यू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर इनकम, व्हाट यू गेट इज ओ ए इंटू ओ बी इज एज गुड एज ओ ए सी बी, एंड ओ डी इंटू ओ बी इज एज गुड एज ओ डी, इसको नाम देते हैं कुछ तो, मान लो ई। सो ओ डी ई एंड बी। अगर ओ ए सी बी में से ओडी ई भी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? बचेगा ए बी सी ई, जो कि आपका होगा प्रॉफिट। आप एक बार जरा आराम से गो थ्रू कीजिए एंड लेट मी नो इफ एनी डाउट स्टिल एग्जिस्ट इन दिस। अगर ऐसा कंडीशन कभी आया तो आप सुपर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, ऐसा माना जाए। शॉर्ट रन में अगर आपका एवरेज कॉस्ट इज बिलो मार्जिनल कॉस्ट, you will be in the position that you are earning abnormal profits, super profits, supernormal profits. But I'm not saying ऐसा ही होगा हर बार, ये one of the scenario है, ऐसा हो सकता है। तो आपका profit portion is this is actually your profit portion. Any doubt after this stage? No, sir. अच्छा, वैसे मैं इसको सुपर प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ? इसका सिंपल रीजन है, आपने जब टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखा है तो इसमें कौन सी कॉस्ट आ चुकी होगी? कहना इसे, इसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड्स आ चुका होगा, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इवन एंटरप्रेन्योर, सबको जो जो रिवॉर्ड में देना है इकोनॉमिक्स में उसको कॉस्ट बोलते हैं। लैंड के लिए आपने रेंट दिया है, कॉस्ट है। लेबर के लिए वेजेस दिया है, कॉस्ट है। कैपिटल के लिए आपने इंटरेस्ट दिया है, कॉस्ट है। और एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट दिया है तो वो भी कॉस्ट है। याद है हमको स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट में देखा था, इकोनॉमिक कॉस्ट में द प्रॉफिट्स व्हिच आर अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर नॉर्मली विल बी आल्सो ट्रीटेड एज कॉस्ट। तो मतलब कहना है इससे कि एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी हमने टीसी में ले लिया है। यस और नो?
यस। तो मतलब एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी वो टीसी में आ चुका है। उसके बाद भी आप अगर कुछ एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दैट इज नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज अ सुपर प्रॉफिट। हाँ, जितना एंटरप्रेन्योर को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, अगर आप उतना ही कमा रहे हो तो आप उसको बोलोगे नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एंटरप्रेन्योर को जितना एक्सपेक्टेड था, इफ यू आर अर्निंग दैट मच प्रॉफिट, देन यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अगर मैं बोल दूं कि टीआर माइनस टीसी इज 0, तो आपने क्या अर्न किया? अगर टीआर माइनस टीसी इज 0, तो आपने क्या अर्न किया? कुछ भी नहीं। अगर टीआर माइनस टीसी इज 0, तो आप क्या बोलोगे? आप कौन सी कंडीशन में हो? आप सुपर प्रॉफिट्स में हो, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स में हो, कि आप लॉसेस में हो? क्या बोलोगे अगर टीआर माइनस टीसी इज 0? इफ टीआर माइनस टीसी इज इक्वल टू 0, total revenue minus total cost is 0, what will you say? You are into super profits, or you are into normal profits, or you are into losses? Answer will be you are into normal profits. Why normal profits? Because in TC you have already considered entrepreneurs expected profit. तो इसका मतलब ये नहीं, जब आपने टीसी में एंटरप्रेन्योर का भी रिवॉर्ड ले लिया है और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड अपने आप में प्रॉफिट ही है, इसका मतलब है जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट अर्न कर लिया आपने। आपने उसके ऊपर कुछ नहीं कमाया, बट आपने जितना एक्सपेक्टेड था उतना अर्न किया। यस, यस। हेंस वी आर सेइंग अगर टीआर माइनस टीसी 0 आता है, मतलब हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अगर टीआर माइनस टीसी कुछ भी आता है, कोई भी वैल्यू आती है विच इज मोर देन 0, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या आप अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑलरेडी टीसी में आ चुका था, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, दैट इज गोइंग टू बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर टी आर टी सी इक्वल हो जाए, मतलब अगर आपका ग्राफ ऐसे बन जाए, ये आपका एम आर है, ये आपका एमसी कर्व है, इसको एम आर बोलो या ए आर बोलो, और तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। और अगर आपका एसी कर्व ऐसा कुछ बन जाए, इसका भी पॉइंट इधर ही आ रहा है लोअर, तो इस केस में क्या होगा? आपका एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी इधर ही है, और एवरेज रेवेन्यू भी यहीं पे है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को डिनोट करूं, ये मान लो ओ है, पी है, और ये ए है, और ये क्यू है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? कहना इसे ओ पी ए क्यू टोटल रेवेन्यू आएगा। ओ पी ए क्यू टोटल रेवेन्यू आएगा। यस। हाँ। एंड टोटल कॉस्ट कितना आएगा? वो भी ओ पी ए क्यू ही आएगा। बिकॉज आपका एसी कर्व यहाँ पे टच कर रहा है, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे टच कर रहा है जहां पे आपका रेवेन्यू है। सो योर रेवेन्यू एंड योर कॉस्ट आर टच एट द सेम पॉइंट। So if I do TR minus TC, can I say OPAQ minus OPAQ will be nothing but 0? बट यहाँ पे ये मत बोलना कि कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम अर्न कर रहे हैं। हम नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, क्योंकि
टीसी में हमने ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ले लिया है, तो मतलब हम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। और अगर आपका ग्राफ ऐसा ना हो, ये आपका एमआर है, ये आपका एमसी कर्व है, और अगर आपका एसी कर्व कुछ तो ऐसे है, अगर आपका एसी कर्व कुछ तो ऐसे है, तो अब क्या हो रहा है, ये है आपका ओ एम एक्सपेक्टेड या इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसपे आप ओपी अर्न कर रहे हो, बट आपकी कॉस्ट किधर है अभी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉस्ट किधर है, कॉस्ट हायर है, कॉस्ट इज समवेयर ओवर हियर, ये ओ एस मान लो, यस और नो, कैन आई से योर कॉस्ट इज हायर नाउ, Yes. यस। तो आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, इस केस में आप क्या इनकर करोगे, आप इनकर करोगे लॉसेस, ये आपका लॉस रहेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपका लॉस रहेगा, क्योंकि आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना रेवेन्यू अर्न किया, और आपने जो पिंक में है उतना खर्चा किया, पिंक में उतना खर्चा किया, व्हाइट में उतना अर्न किया, तो ऑफकोर्स ये जो डिफरेंशियल है ग्रीन में आई एम शोइंग, दिस विल बी योर लॉस, दिस विल बी योर लॉस। आर यू गेटिंग दिस? यस। Yes, sir. Yes. So there are Yes. in all three scenarios. First scenario is of supernormal profits, or you can call it as abnormal profits, which will happen when your AC point is below MC. Your AC is cutting the equilibrium of level below MC. तब आपको मिलेंगे abnormal profits. Whereas जब आपका AC ज्यादा होगा, average cost is cutting above योर मार्जिनल कॉस्ट, तब आपके होने वाले हैं लॉसेस। और जब वो सेम पॉइंट पे कट करेगा, ये ग्राफ में थोड़ी गड़बड़ी है, ये ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए था, दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, इट शुड बी टचिंग इट एट द सेम पॉइंट, बट ठीक है, कांट हेल्प इट। अगर आपका रेवेन्यू और आपका कॉस्ट अगर सेम हो जाए, सो इन दैट केस आपको मिलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। आई होप मैंने आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स का भी ग्राफ बना के दिखाया था। Yes, so this is the graph for normal profits. Notice all the three graphs. This is the graph for supernormal profits. This is the graph for normal profits. And this is the graph for losses. So short run, anything can happen. You can earn abnormal profits because of market fluctuations, because of some extra benefits what you might get. बट वो बहुत समय तक नहीं मिलेगा, देयर इज अ लिमिटेशन टू इट। एक पॉइंट तक आपको वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे, एक पॉइंट के बाद आप वापस न्यूट्रलाइज कर दोगे एंड यू विल अगेन कम टू योर नॉर्मल प्रॉफिट्स। कभी भी लॉसेस होंगे, बट लॉसेस भी टेम्पररी होंगे, वापस आप कम बैक करके यू विल अगेन कम टू नॉर्मल। सो लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल मिलेगा, शॉर्ट रन में आपको एबनॉर्मल प्लस एबनॉर्मल माइनस मिल सकते हैं। ठीक है, सो विल जस्ट हैव अ शॉर्ट ब्रेक, टिल देन आप लोग क्या करोगे, यू विल जस्ट गो थ्रू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यू विल गो थ्रू ऑल द थ्री ग्राफ्स प्रॉपरली। एनी डाउट यू कैन लेट मी नो, आई विल डिस्कस देम। once you are pro with this, you understand all the graphs, then we will move towards imperfect competition. So the break, try to go through all these graphs properly. You can just rejoin once I send the new link.